اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی، سن 40 عام الفیل پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے وحی کا نزول ہوا۔ 3 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامک مشن کو بہت ہی سیکریٹلی اور اپنے قابل معتمد کن پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، بہت ہی کلوز فرینڈ، بہت ہی کلوز رشتہ داروں کے درمیان میں اس مشن کو پھیلایا، اور 3 سال تک سائلنٹلی اسلامک مشن آگے بڑھتا رہا۔ جب 3 سال ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ وہ اب اپنے اقربا کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کلوز ریلیٹیوز کو، اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ لہذا دعوت ذوالشیرہ کا واقعہ پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور اپنے مشن کے بارے میں بتایا، لیکن وہاں پر بھی خاندان بنی ہاشم کے جو معززین، خاندان قبیلہ قریش کے جو معززین اور بزرگان جمع ہوئے تھے، وہ وہاں سے ہنستے مسکراتے ہوئے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ ابو طالب اب آج سے آپ اپنے بیٹے کی اتباع کیجیے۔ وہ لوگ اس چیز کو، اس تحریک کو، اس مشن کو بہت ہی لائٹلی لے رہے تھے، بہت ہی بہت ہی لائٹلی لے رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ ایک طرح کا یہ کوئی مشن ہے، ایک طرح کا یہ کوئی تحریک شروع ہوئی ہے جس میں 2 4 لوگ جڑے ہیں اور پھر یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ جنرل پبلک کو، جنرل گیدرنگ کو ایڈریس کریں اور ان تک اسلام کے پیغام کو پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ فاران کی ایک جو پہاڑ تھا مکے کے اندر، چھوٹا پہاڑی تھی، جو پہاڑ کی چوٹی تھی جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھ گئے اور وہاں سے مکے کے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے اہل مکہ، میری بات کو غور سے سنو۔ تمام مکے کے لوگ اس پہاڑی کے قریب جمع ہو گئے نبی کو سننے کے لیے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان سے ایک سوال کیا، یعنی ان کے کیوریوسٹی کو جگایا، ان کے ذہن کو ایک طرف یکجا کیا کہ سب اکٹھا ہو جائے۔ تو نبی نے کہا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ بے شک اے عبداللہ کے بیٹے، ہم آپ کی بات کو فوراً قبول کر لیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ جو بولیں گے سچ بولیں گے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر تمہیں میری بات پہ بھروسہ ہے اور یقین ہے تو سنو، قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ۔ سنو، میں اللہ کی جانب سے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں گمراہیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں اور میں تمہیں اسلام کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو سننے کے بعد جب نبی نے کہا کہ کہہ دو کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منحرف ہو گئے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب دشمن ہو گئے کھلے ہوئے، اور نبی کی کسی بھی بات کو سننا اور قبول کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جہاں تک بات دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سافٹ اسپوکن یعنی شیریں بیان تھے، اپنی بات کو جب وہ کہتے تھے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ان کے لہجہ اتنا زیادہ سافٹ اسپوکن اور شیریں بیان تھے کہ لوگ ان کو سنتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے ٹیچنگز کے بارے میں بات کرتے تھے، آپ خدا کے وجود کے بارے میں، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ زکوٰۃ دو، لوگ برابر ہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے، لڑائی جھگڑا آپس میں نہیں کرنا چاہیے، امن و امان سے رہنا چاہیے، یہ تمام باتیں وہ قبول کرتے تھے اور نبی کی سنتے تھے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے تھے۔ لیکن معاملہ جو تھا، جہاں پہ انحراف تھا، جہاں پہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تھا پولیتھزم۔ وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اے محمد، ہم جہاں اتنے خداؤں کو مان رہے ہیں وہاں تمہارے خدا کو بھی مان لیں گے، جہاں 360 خدا ہیں وہاں ایک خدا اور بھی۔ لیکن بات کیا تھی اختلاف کی، کہ وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔
उनका ये मानना था, उनकी सोच में, उनकी थिंकिंग में ये चीज़ थी कि कैसे हो सकता है कि हम 360 खुदाओं को छोड़कर सिर्फ एक खुदा मान लें, जबकि उनके अलग अलग खुदा थे। कबीले, हर कबीले का खुदा अलग था, खुशी और गम का खुदा अलग था, सफ़र का खुदा अलग था, बिजनेस का खुदा अलग था, खाने का खुदा अलग था, पानी का खुदा अलग था। तो वो ये सोचते थे कि किस तरीके से हम इन तमाम खुदाओं के बदले में एक खुदा को मान लें। फिर जो लोग साहिब इक़्तिदार थे, जो बिजनेस क्लास थे, जो एलीट क्लास थे, जिनके हाथ में बिजनेस था, जो पूरी सोसाइटी को गवर्न कर रहे थे, उन्हें एक खदशा ये भी था कि ये लोग अगर इस्लाम को ज्वाइन कर लेते हैं अवामुन्नास, तो ऐसा होगा कि उनकी जो चौधराहट है, उनकी जो होल्ड है सोसाइटी पे, वो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा वो लोग उनको आवाम को, जो अवामुन्नास एक जनरल पब्लिक थी, उसको ये वर्गलाते थे कि देखो, ये मोहम्मद जो है वो एक नौज़बिल्ला झूठा दीन लेकर आए हैं, ये खुद से इन आयतों को नौज़बिल्ला गढ़ते हैं, अपनी तरफ से इन आयतों को कहते हैं। अगर तुम इनके बहकावे में आ गए और तुमने अपने खुदाओं को छोड़ दिया, तो वो एक खुदा तुम्हें किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, वो एक खुदा 360 खुदाओं का काम कैसे करेगा। और अगर तुम्हारा खुदा नाराज़ होके चला गया मक्के से, तो फिर तुम पर अज़ाब आएगा, तुम्हारे नौज़-बिल्ला तुम्हारे घर लुट, मतलब तुम्हारा घर लुट जाएगा, तुम वो हर तरह से इमोशनली कि अगर खुदा नाराज़ होके चला गया तो कहत पड़ जाएगा, फसलें बर्बाद होंगी। तो इस तरीके से, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगंडे भी किए, झूठी बातें मंसूब किया। ये कहा कि नौज़-बिल्ला ये जादूगर हैं, नौज़-बिल्ला ये शायर हैं, नौज़-बिल्ला ये यानी इनका दिमाग सही नहीं है। इस तरीके से क्या भाई, अगर हम ये कहते हैं कि इनका दिमाग सही नहीं है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो इन तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो जिनके दिमाग सही नहीं होते हैं, उनसे डरते हैं, दूर भागते हैं। तो अगर बच्चों अवाम में हमें क्या खबर फैला दी कि इनका दिमाग सही नहीं है, कि आगे बच्चे इनके करीब ना जाएं। फिर ये कहा कि नौज़बिल्ला ये जादूगर हैं, जादू करते हैं। औरतें ख़ुसूसन सोसाइटी में वो जादू से डरती हैं, खौफ़ खाती हैं कि फ़लाँ ने जादू करा दिया, ये जादू हो गया, ये जादू हो गया, वो जादू हो गया। तो जादू, नज़रेबाज़ी, इन तमाम चीज़ों से उनका एक अजीब अटैचमेंट होता है। तो ये कहा कि जादूगर है, ताकि औरतें नबी के करीब ना आएँ। और तीसरा जो इल्ज़ाम लगाया कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये शायर हैं। शायर का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि मैं किसी शायर की तौहीन कर रहा हूँ, लेकिन शायर का कहना है उनकी बात का कोई मतलब नहीं है, ये तो ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाते रहते हैं, ये आसमानों की बातें करते रहते हैं, ताकि उनकी बात के वक़्त को कम कर दिया जाए। लिहाज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगंडे किए गए, लोगों से कहा गया कि उनसे ना मिलें, उनकी बात को ना सुनें। अगर उनकी बातों को सुना तो उनका खुदा नाराज़ होके चला जाएगा और फिर वो वापस नहीं आएगा, फिर कहत आएगा, फिर भूखमरी आएगी, लोग मर जाएँगे। इस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगंडे मक्के में किए गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन का पैगाम, इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे थे, और यही वजह थी कि इक्वालिटी का पैगाम, औरतों के हुकूक के बाद, गुलामों के हुकूक के बाद, कनीज़ों के हुकूक के बाद, मसावात के बाद, भाईचारगी के बाद, अखलाक के बाद, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के बाद, अमन व अमान के बाद, ये वो बातें थी कि जिससे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ख़ुसूसन वो लोग जो कई सालों से मज़ालिम का सामना कर रहे थे, जिन पे ज़ुल्म सितम हो रहे थे, एट्रोसिटीज़ हो रहे थे, ऑप्रेस्ड क्लास थे, अब उनके पास मौका था। जैसे ग़ुलाम तबका, कनीज़ों का तबका, और वो कबीले जो जिनका कोई हामी और मददगार सपोर्टर्स नहीं था, जो लोग बिल्कुल अरबों के जो एलीट क्लास है, उनके जो तशद्दुद और ज़ुल्म का सामना कर रहे थे, वो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से काफ़ी मुतासिर हो रहे थे। और यहाँ जो मक्कन पार्टी थी, जो कुफ़ार थे, उनको ये लग रहा था कि ये मिशन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। कितने लोग हैं, ये अली हैं, खदीजा हैं, ज़ैद इब्न हारिसा हैं, रसूल अल्लाह हैं, उनके घर के लोग हैं, फिर ये 2-4 दिन का ये सब है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब उनको ये लगने लगा कि आज खबर आई कि फ़लाँ ईमान ले आया, आज बिलाल ईमान ले आया, आज जो है अम्मार ईमान ले आया, आज फ़लाँ कबीला मुसलमान हो गया, आज फ़लाँ लोग मुसलमान हो गए, तो अब ये अलार्म्ड हो गए। अब इनको लगा कि अरे, अगर इसी तरीके से ये तहरीक, ये मिशन आगे बढ़ता रहा, तो ये सब लोग हमारे हाथों से निकल जाएँगे और ये लोग बागी हो जाएँगे। यहाँ तक कि कनीज़ और ग़ुलाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमदर्द हो गए थे, जैसे हज़रत बिलाल का ही वाक़या है।
इसमें यूट्यूब पे ग़ालिबन एक मूवी अवेलेबल होगी, पहले थी, अब ये है कि नहीं, द मैसेज के नाम से रिसाला मूवी, अगर आप उसमें देखें तो उसमें भी दिखाया गया कि जब हज़रत अम्मार को ये लोग पकड़ के ज़बरदस्ती लेकर गए उमैया बिन खलफ के घर में, और वहाँ पर हज़रत बिलाल से कहा कि इनको कोड़े लगाओ, तो नबी पाक जब जनाब बिलाल ने उनकी बातें सुनी थी, यानी मक्कन पार्टी की और जनाब अम्मार की, तो मक्कन पार्टी ने उनसे कहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि ये काला हबशी गुलाम हमारे बराबर हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि बेशक इस्लाम का पैगाम यही है कि सब अल्लाह के बंदे हैं, वो मखलूक हैं उसके, और इन बेसिस पे रंग भेद इन तमाम चीज़ों पे किसी, तो हज़रत बिलाल ने वहाँ पर उनको जनाब अम्मार को हंटर मारने से, कोड़े मारने से इनकार कर दिया। तो मालूम ये हुआ कि इस तरीके से अब वो उन पर जुल्म किया, हज़रत बिलाल को जो है ज़मीन पे, जलती हुई ज़मीन पे लिटा दिया, उनके ऊपर जलता हुआ एक पत्थर बड़ा, जिसको आग में तपाया गया, उसके बाद उनके सीने पे रख दिया, ऊपर सूरज, नीचे गर्म रेत, उस पे जलता हुआ पत्थर आपके सीने पे रख दिया गया। उसके बाद भी हज़रत बिलाल वो अहद अहद, कोई खुदा नहीं सिवाय खुदा के, वो कहते रहे। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन आगे बढ़ रहा था, लोग इससे जुड़ रहे थे, मक्कन पार्टी नहीं चाहते थे कि मिशन आगे बढ़े। लिहाजा अब वजह ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, कबीले कुरैश में ख़ानदान बनी हाशिम से, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब थे, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा थे, और तमाम ये लोग जो कि वाक़ईन बहादुर थे, शुजा थे, और जिनका सोसाइटी में एक होल था। लिहाजा मक्कन पार्टी कुफ़ार जो थे, वो डायरेक्टली पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असॉल्ट नहीं कर सकते थे, उन्हें कोई तकलीफ बज़ाहिर बहुत बड़ा नुकसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामने आके नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन लोगों को टारगेट किया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिशन में जुड़ चुके थे, मुसलमान हो चुके थे, और जिनका कबीला बहुत ज़्यादा पावरफुल कबीला नहीं था, जैसे हज़रत अम्मार का कबीला था, या वो ग़ुलाम और कनीज़ जो इस्लाम की तरफ मरग़ूब हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे, इस्लाम को कबूल कर लिया था उन लोगों ने, उनको टारगेट करना शुरू किया, उन पे ज़ुल्म सितम करना शुरू किया। इसका ये मतलब नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तशद्दुद का सामना नहीं करना पड़ा, नहीं। आपने सुना होगा कि नबी जिस रास्ते से गुजरते थे उसमें कांटे बिछा दिए जाते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली से गुजरते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नौज़ुबिल्लाह कूड़ा और करकट डाल दिया करते थे, हालत नमाज में आँख पर ऊँट की गलाज़तें डाल दिया करते थे, आपको पीछे शरीर बच्चों को लगा देते थे जो आप पर पत्थर मारते थे, और आप लहू लुहान हो जाते थे, आपका खून बहने लगता था। ये तमाम परेशानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झेलनी पड़ी, और उनके जो लोग ईमान ले आए थे, जैसे हज़रत जो है दूसरे खलीफा उमर इब्न ख़त्ताब, जब वो ईमान नहीं लेकर आए थे, मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने अपनी कनीज़ लुबीना को, उनका का नाम लुबीना था, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि खुद थक गए, एग्ज़ॉस्ट हो गए, टायर्ड हो गए, लेकिन वो फिर भी रसूलुल्लाह और इस्लाम के पैगाम के कोई ऊपर अहद, अल्लाह एक है, और वो तमाम चीज़ें कहती रही, यानी उतना टॉर्चर किया। हज़रत बिलाल, जिस पर उमैया बिन खलफ, हमने बताया कि आपको जलती ज़मीन पे लिटा दिया, आपके जो जो मालिक था आपका हज़रत बिलाल का, जिसका नाम उमैया बिन खलफ था, और उसके बाद आप पर जलता हुआ पत्थर रखा गया, और आपको तरह तरह से टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को, जिनके अच्छे टर्म्स थे ख़ानदान बनी उमैया से, उनको पैसा लेकर भेजा कि जाओ और बिलाल को ख़रीद के आज़ाद करो। वो गए और नियर अबाउट डबल और ट्रिपल कीमत दे के हज़रत बिलाल को ख़रीदा, और फिर उनको आज़ाद कर दिया। हज़रत अम्मार के वालिद और वालिदा हज़रत यासिर और हज़रत सुमैया, इतना टॉर्चर किया हज़रत अम्मार की वालिदा हज़रत सुमैया को, इतना टॉर्चर किया कि वो शहीदा हो गईं, वो शहीद हो गईं, और वो पहली वूमेन है, इस्लाम की सबसे पहली ख़ातून हैं जो शहीद हुई हैं। फर्स्ट मार्टायर ऑफ इस्लाम जो थी, इस्लाम की सबसे पहली शहीदा, वो जनाब अम्मार की वालिदा बीबी सुमैया थीं। यहाँ तक कि आपके वालिद हज़रत यासिर को भी शहीद कर दिया गया, इतना टॉर्चर किया गया। तो इस तरीके से इन लोगों को टॉर्चर किया जाता था। खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे शरीर बच्चों को लगा दिया, बदतमीज़ बच्चों को, शरारती बच्चों को, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नबी की अबा खींचता, कोई आपको पत्थर मारता, कोई आपके पीछे ताली बजाता। खैर,
इस बारे में, इस वाक़ये के बारे में हमने अपनी एक स्टोरीज़ फॉर द इनफैलिबल्स की जो सेकंड स्टोरी है, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, जहाँ हमने बताया है कि किस तरीके से फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकलते थे और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ फरमाते थे, आपकी हिफ़ाज़त फरमाते थे। लेकिन इतने मज़ालिम, इतने ज़ुल्म हुए, नबी को सताया और नबी जो मुसलमान लोग हो गए थे, उनका जीना मुश्किल किया, बायकॉट कर दिया गया कि ये लोग, इनसे कोई चीज़ ना खरीदो, इनके यहाँ आओ-जाओ नहीं, इनके यानी इकोनॉमिकली वीक कर दिया कि कोई उनसे सामान नहीं खरीदता था, कोई उनको सामान बेचता नहीं था। ये तमाम चीज़ों की वजह से मुसलमान जो लोग होना भी चाहते थे, वो नहीं हो पाते थे कि अगर हम मुसलमान हो गए, तो हमसे कोई चीज़ों को खरीदेगा नहीं, हमसे कोई तिजारत नहीं करेगा, हमसे कोई राब्ता नहीं रखेगा। लिहाज़ा ये एक स्ट्रगल का टाइम था, ये बहुत ज़्यादा सख्त पीरियड था जो मक्कन लाइफ का था, जो मक्के में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चाहने वालों की थी। लिहाज़ा जब मक्के की हवा बहुत ही ज़्यादा पुरआशूब हो गई और वहाँ पर मुसलमानों का साँस लेना मुश्किल हो गया, और आप तमाम जो ये मुसलमान जो ख़ुसूसन वो कबीले जिनका कोई साथी नहीं था, जो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल कबीले नहीं थे, उनको जब इन मज़ालिम का सामना हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को सजेस्ट किया कि वो लोग मक्का छोड़कर इथियोपिया चले जाएँ, हबशा चले जाएँ, हबशा की जानिब हिजरत करें। अगली वीडियो में हम आपको बताएँगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मुसलमानों को हबशा की जानिब भेजा, मुसलमानों की पहली हिजरत कहाँ के लिए हुई, उसका कमांडर कौन था, वहाँ पे किन हालात का सामना करना पड़ा, क्या मुसलमानों के हबशा हिजरत कर जाने के बाद जो मुसलमान मक्के में रह गए, उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगली वीडियो में हम बताएँगे, तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।